Hello students, I am Abhay Kumar going to discuss part 5 of the chapter 10 Web Optics of class 12. In this video, I am going to discuss the topic which is young double slit experiment and expression for fringe width. It is a very it is a very important topic for CBSE 12th board examination and different state boards examinations too. First of all, we have to discuss Young's double slit experiment, and then we have to derive expression for fringe width in Young's double slit experiment. Thomas Young in 1801 performed an experiment which is called double slit experiment to demonstrate wave nature of light. This experiment also also in support also an evidence in support of wave nature of light as predicted by Huygens. In Young's double slit experiment, a narrow slit line slit S is illuminated by narrow line slit S. In a screen L, a hole is made in the screen L, which works as a slit, and it is illuminated by a monochromatic light source. Another screen M is placed ahead of a screen L, in which two holes are made, which works as two slits S1 and S2. And then another screen, which is N, on which different interference pattern is obtained. When narrow slit S is illuminated in a screen L is illuminated by a monochromatic light source such as sodium lamp, cylindrical wavefronts are produced because cylindrical wavefronts are produced from a line source. And these cylindrical wavefronts then incident on two slits S1 and S2, which are equidistant from narrow slit S. S1 and S2 are two slits which are equidistant at equal distance from slit S. According to Huygens theory, all points lie on a wavefront behaves as secondary sources, and they produce secondary wavelets which travel with same speed as the wavelets produced from the original light source. Here S1 and S2 we have said S1 and S2 when cylindrical wavelets incident on two slits S1 and S2. These two slits we have said secondary sources, and also we have such a coherent sources S1 and S2. And due to two coherent sources, when light waves are produced from two coherent sources and light waves superposed in a medium in different phases or in same phases, we obtain interference pattern of alternate brightness consisting of alternate bright and dark fringes.
on the screen N. Point O of the screen N is a position of bright fringe because secondary wavelets, according to Huygens theory, secondary wavelets producing from sources S1 and S2 when cylindrical wavefront incident on coming from slit S when slit is illuminated by monochromatic light source. Then S1, S2 behaves as secondary sources of light, and they produce secondary wavelets. They travel in the medium between screens M and N, and due to superposition of light waves in same phases or different phases at different places of the different points of the medium, we get alternate bright and dark fringes. That is, interference pattern is obtained on the screen N. Position of point O of the screen is a position of bright fringe because secondary wavelets coming from S1 and S2 reach at point O in same phase. Therefore, path difference between the secondary wavelets coming from S1 and S2 is 0 because distance of point O from S1 and S2 is same. Therefore, point O of the screen N is the position of bright fringe. That is, a bright fringe is formed at point O of the screen N. But above point O and below point O, we obtain alternate dark and bright fringes, and this forms an interference pattern consisting of alternate bright and dark fringes of equal widths. Because in interference pattern, the positions of maxima and minima, that is bright and dark fringes, are of equal widths. इंटरफेरेंस पैटर्न में व्यतिकरण इंटरफेरेंस पैटर्न जिसे व्यतिकरण प्रतिरूप हिंदी में कहा जाता है, उसमें जो चमकीली और काली धारियाँ होती हैं, ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेज होते हैं, वो अल्टरनेट मैक्सिमा और मिनिमा, मैंने चमकीली और ब्राइट और डार्क फ्रिंजेज अल्टरनेट ऑब्टेन होता है। तो स्क्रीन एन का पॉइंट ओ पर, जो कि कोहेरेंट सोर्सेस दोनों स्लिट S1 और S2 जो कोहेरेंट सोर्स का वर्क थी, कोहेरेंट सोर्सेस कला संपर्क सोर्स प्रकाश स्रोत जैसा वर्क करेंगे, क्योंकि एस से लाइंस लीनियर स्लिट एस से या लाइन स्लिट एस से को अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट से इल्यूमिनेट किया जाएगा तो इससे सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट प्रोड्यूस होगा और ये ट्रेवल करेगा स्क्रीन एल और एम के बीच में, और एस से S1 और S2 के बीच का डिस्टेंस सेम है। तो जब सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट S1 और S2 पर इंसिडेंट करेगा तो S1 और S2 सेकेंडरी सोर्स जैसा बिहेव करेंगे और उनसे सेकेंडरी वेवलेट्स प्रोड्यूस होगा, जो कि एम और एन के बीच में, स्क्रीन एम तथा एन के बीच में सुपरपोज्ड होगा मीडियम में डिफरेंट पॉइंट्स पर सेम फेजेज एंड अपोजिट फेजेज में, और जिसके कारण स्क्रीन एन पर अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेज ऑब्टेन होते हैं, दैट इज इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन होता है। लेकिन पॉइंट ओ जो पोजीशन है, ये पॉइंट ओ पोजीशन है स्क्रीन एन का, यहाँ पर सेकेंडरी सोर्स, चूँकि ओ का डिस्टेंस, पॉइंट ओ का डिस्टेंस स्क्रीन एन पर दोनों सेकेंडरी सोर्सेस S1, दोनों स्लिट्स S1 और S2 के सेंटर से, S1 से ओ का डिस्टेंस और S2 से ओ का डिस्टेंस सेम होगा, इसलिए दोनों S1 S2 से प्रोड्यूस होने वाला लाइट सेकेंडरी वेवलेट्स अकॉर्डिंग टू हाइजेंस थ्योरी S1 S2 से सेकेंडरी वेवलेट प्रोड्यूस होगा, जो कि वेव फ्रंट इस पर इंसिडेंट हुआ है एस से प्रोड्यूस होने वाला। तो S1 से O का डिस्टेंस और S2 से दोनों जो ये लाइन सोर्स है, दोनों जो लीनियर सोर्स है स्लिट है उसके सेंटर से, जो कि सेकेंडरी सोर्स जैसा बिहेव करेगा, उसके सेंटर से S1 S2 से O का डिस्टेंस सेम है, इसलिए S1 S2 से प्रोड्यूस होने वाला लाइट वेवलेट्स के बीच में पाथ डिफरेंस 0 होगा, और पाथ डिफरेंस 0 होने के कारण S1 और S2 से प्रोड्यूस होने वाली जो सेकेंडरी वेवलेट्स होंगी वह द्वितीय तरंगिकाएँ होंगी, वह सेम फेज में O पर सुपरइम्पोज्ड होगी, अध्यारोपित होंगी, जिसके कारण O पर हमेशा O का जो पोजीशन होगा वहाँ पर ब्राइट फ्रिंज चमकीली धारी उत्पन्न होगी।
जबकि ओ के ऊपर तथा नीचे अल्टरनेटली ओ के ऊपर, फिर उसके डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क। तो ओ के ऊपर तथा नीचे, ओ पॉइंट के ऊपर तथा नीचे अल्टरनेटली डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेज इंटरफ्रेंस पैटर्न में व्यतिकरण प्रतिरूप में ऑब्टेन होगा, जो कि यंग के जहाँ तक यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट या यंग का ड्यू स्लिट प्रयोग की बात है। और यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से लाइट वेव्स का वेव नेचर को जस्टिफाई करता है, क्योंकि यहाँ पर सेकेंडरी हाइगन्स सेकेंडरी वेवलेट थ्योरी का यूज करके इंटरफेरेंस के फेनोमेनन को एक्सप्लेन किया जा सकता है इस यंग्स के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में। अब पॉइंट पी का जो पोजीशन है, पी पॉइंट जो कि सेंटर से सपोज करते हैं, सेंटर से स्क्रीन एन पर, सेंटर से ओ से स्क्रीन एन का सेंटर ओ से, जहाँ पर कि ब्राइट फ्रिंज फॉर्म होगी, चमकीली धारी का निर्माण होगा यहाँ पर ओ बिंदु पर। तो यहाँ से एक्स डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है स्क्रीन एन पर, तो वहाँ पी का जो पोजीशन होगा वो मैक्सिमा भी हो सकता है, मिनिमा हो सकता है। मतलब पी पॉइंट पर, स्क्रीन के पी पॉइंट पर अल्टरनेट ब्राइट और डार्क फ्रिंज ऑब्टेन होगा। तो वो डिपेंड करेगा कि S1 तथा S2 से प्रोड्यूस होने वाला जो दोनों कोहेरेंट सोर्स का भी जैसा वर्क करेगा S1 S2, क्योंकि बिना कोहेरेंट सोर्सेस के इंटरफ्रेंस की घटना हुई, इंटरफ्रेंस फेनोमेनन को डिमॉन्स्ट्रेट नहीं किया जा सकता। तो S1 S2 कोहेरेंट सोर्सेस जैसा वर्क करेंगे, और S1 S2 से प्रोड्यूस होने वाला लाइट वेवलेट्स के बीच में यहाँ पार्ट डिफरेंस होगा पी पॉइंट पर। ओ पर कोई पार्ट डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि S1 से ओ का डिस्टेंस और S2 से ओ का डिस्टेंस सेम है, तो पार्ट डिफरेंस 0 है। तो S1 S2 से प्रोड्यूस होने वाला सेकेंडरी वेवलेट्स वो पर सेम फेज में समान कला में अध्यारोपित होंगी। समान सेम फेज का मतलब है दो लाइट वेव्स का क्रेस्ट से क्रेस्ट मिलना या ट्रॉ से ट्रॉ मिलना, और अपोजिट फेज का मतलब है एक वेव का क्रेस्ट से दूसरे वेव के ट्रॉ को मिलना। तो ओ पर यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज हमेशा फॉर्म होगा, यह याद रखने की बात है। लेकिन पी पॉइंट जो है वह पोजीशन हो सकता है, पी पॉइंट का जो पोजीशन होगा स्क्रीन पर वह मैक्सिमा का भी हो सकता है, मिनिमा का भी हो सकता है, क्योंकि दोनों कोहेरेंट सोर्सेस S1 और S2 या दोनों स्लिट का हैं, जो कि सेकेंडरी सोर्स जैसा बिहेव करेंगे अकॉर्डिंग टू हाइगन्स प्रिंसिपल, सेकेंडरी वेवलेट प्रिंसिपल। तो S1 से जो लाइट वेवलेट सेकेंडरी वेवलेट प्रोड्यूस होगा पी तक पहुंचेगा, और फिर S2 से जो लाइट वेवलेट प्रोड्यूस होकर के पी तक पहुंचेगा, दोनों के बीच में पार्ट डिफरेंस होगा। तो पी पॉइंट स्क्रीन एन का पी पॉइंट मैक्सिमा का पोजीशन होगा या वहाँ पर मिनिमा फॉर्म होगा, मतलब ब्राइट फ्रिंज फॉर्म होगी, वहाँ पर चमकीली धारी उत्पन्न होगी या डार्क फ्रिंज काली धारी उत्पन्न होगी या अंधेरा होगा, वो तो डिपेंड करेगा पार्ट डिफरेंस पर। S1 तथा S2 से प्रोड्यूस होने वाला लाइट वेवलेट्स के पार्ट डिफरेंस पर डिपेंड करेगा कि पी पॉइंट पर ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मेशन होगा या डार्क फ्रिंज का फॉर्मेशन होगा, और उसके आधार पर हम फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन भी, मतलब दो अल्टरनेट ब्राइट फ्रिंज और दो अल्टरनेट डार्क फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस मालूम कर सकते हैं, जिसे फ्रिंज विड्थ कहा जाता है। तो सपोज किया जाता है कि S1 S2 दोनों कोहेरेंट सोर्सेस है, और इसके बीच का डिस्टेंस 2D है, C सेंटर है जो S के सीध में, S के ठीक सामने। तो S1 S2 के बीच का डिस्टेंस 2D है, तो C सेंटर है अगर S1 S2 के बीच कोई पोजीशन है S के कॉरस्पॉन्डिंग, तो ये डिस्टेंस D और D 2D हो गया, 2D डिस्टेंस बिटवीन टू वर्चुअल सोर्सेस। तो नाउ टू डिटरमाइन टू ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, ये जो हमने डायग्राम यहाँ रिप्रेजेंट किया है, तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है यंग्स के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का। तो इसमें दोनों कोहेरेंट सोर्सेस S1 S2 को हम, या दोनों एक ही सोर्स S से प्रोड्यूस होने वाला दो वर्चुअल सोर्स है, जिसको दो कोहेरेंट सोर्सेस जैसा ट्रीट किया जाएगा। तो S1 S2 के बीच का जो डिस्टेंस है दोनों कोहेरेंट सोर्सेस या दोनों स्लिट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वह 2D है, सपोज किया जाता है। तो यहाँ पर जो फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन होगा उसे हमें डिराइव करना है, बीटा इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन 2D। काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस पर प्रॉब्लम्स भी है, और इसे एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में। तो हमें मालूम करना है एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ बीटा इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन 2D, यही एक्सप्रेशन मालूम करना है। तो सपोज किया जाता है कि दोनों कोहेरेंट सोर्सेस S1 S2 या दोनों स्लिट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2D है। तो लेट S1 S2 डिस्टेंस बिटवीन टू कोहेरेंट सोर्सेस
और 2 स्लिट्स इज 2D। देयरफॉर यहाँ से C से, या C सेंटर है दोनों के बीच का, तो C से S1 का डिस्टेंस D और C से S2 का डिस्टेंस भी D हो जाएगा। देयरफॉर CS1 इक्वल टू CS2, CS2 इक्वल टू D, और यहाँ पर CS1 ये इक्वल हो जाएगा OM1 के, और CS2 हो जाएगा इक्वल OM2 के, तो ये भी डिस्टेंस D और D हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर S1M1 और S2M2 दोनों पैरेलल है, और S1M1 परपेंडिकुलर ड्रॉन किया गया है स्क्रीन N पर। तो S1M1 and S2M2 are two perpendiculars drawn from point S1 center of the slit S1 and S2 on the screen N. So let S1 and S2, that is distance of the screen N from the plane of the two coherent sources S1 and S2 is D. So let S1M1 and S2M2 is S1M1 is equal to S2M2 is equal to D. That is distance of the a screen from the plane of two coherent sources. D is the distance of the screen from the plane of two coherent sources, from the plane of two coherent sources S1 and S2 और two slits S1 and S2, जो कि दोनों स्लिट्स कोहेरेंट सोर्सेस जैसा बिहेव कर रहे हैं, जिससे कि इंटरफेरेंस का फेनोमेनन को डिमोन्स्ट्रेट किया जा सके। फ्रॉम द प्लेन ऑफ टू कोहेरेंट सोर्सेस और टू स्लिट्स, एक्चुअल में स्लिट है जो कोहेरेंट सोर्स के जैसा बिहेव कर रहा है, टू कोहेरेंट सोर्सेस और स्लिट्स। Therefore distance OM1 is equal to CS1 is equal to D, and OM2 is equal to CS2 is equal to also D. Therefore OM1, O is the center of the screen N, OM1, चूँकि S1M1 नॉर्मल परपेंडिकुलर ड्रॉन किया गया है स्क्रीन N पर, S1M1 और S2 से S2M2 स्क्रीन N पर। OM1 is equal to CS1 is equal to D, and OM2 is equal to CS2 is also D. Now let distance of point P where bright or dark fringe is to be obtained, which depends on the path difference between S1 light wavelets produced from two coherent sources S1 and S2। तो P पॉइंट इंटरफेरेंस मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा, ये हमें ऑब्टेन करना है। तो उसमें कंडीशन होगा पार्ट डिफरेंस इक्वल टू λ/2 का इवन मल्टीपुल है या ऑड मल्टीपुल है, इस पर डिपेंड करेगा कि P पॉइंट पर ब्राइट फ्रिंज ऑब्टेन होगा, माने P पॉइंट पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो लेट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम सेंटर ऑफ द स्क्रीन O इज x, तो लेट OP इक्वल टू x, लेट OP इक्वल टू x। अब इसमें राइट एंगल ट्रायंगल होगा, क्योंकि S1M1 नॉर्मल है, परपेंडिकुलर ड्रॉन किया गया है स्क्रीन पर। तो इन ट्रायंगल S1M1P1 पार्ट डिफरेंस हमें मालूम करना है, S1P और S2P, मतलब S2P ये डिस्टेंस ज़्यादा होगा S2 से P का, और S1 पॉइंट जो स्लिट S1 है P पॉइंट से क्लोज है, इसलिए S1P डिस्टेंस कम होगा जबकि S2P डिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो हमें S2 पार्ट डिफरेंस दोनों के बीच में S1 और S2 दोनों के बीच का पार्ट डिफरेंस मालूम करना होगा। दोनों S1 S2 से प्रोड्यूस होने वाला लाइट वेव्स के बीच पार्ट डिफरेंस मालूम करना होगा। तो वह डिस्टेंस S2P ज़्यादा होगा S1P से, इसलिए पार्ट डिफरेंस डेल्टा इक्वल टू S2P माइनस S1P। तो सबसे पहले S1M1P1 से राइट एंगल ट्रायंगल में हम S1P मालूम करते हैं, और उसके बाद सिमिलरली S2M2P से S2P भी मालूम हो जाएगा। इन द राइट एंगल ट्रायंगल, इन द राइट एंगल्ड ट्रायंगल S1M1P, we have S1P square is equal to S1M1 square plus M1P square, S1M1 square plus M1P square। S1M1 is D और M1P इक्वल टू M1P। तो M1P को हम इसको लिख सकते हैं OP माइनस OM1 दैट इज x माइनस टी। M1P इज O से P का डिस्टेंस x है, जबकि O से M1 का डिस्टेंस स्मॉल d है।
तो x माइनस डी हो जाएगा m1p डिस्टेंस, x माइनस डी का स्क्वायर, और यहाँ पर डी स्क्वायर हम बाहर कर लेते हैं ब्रैकेट के, तो यहाँ पर 1 होगा फर्स्ट टर्म में प्लस x माइनस डी स्क्वायर अपॉन कैपिटल डी स्क्वायर। सेकेंड टर्म में ब्रैकेट के अंदर सेकेंड टर्म में डी स्क्वायर नहीं है, इसलिए डी स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा जब डी स्क्वायर को ब्रैकेट से बाहर करेंगे। फर्स्ट टर्म में 1 होगा प्लस x माइनस डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, तो ये S1p होगा, S1p स्क्वायर हमें मालूम करना है S1p, तो इसलिए देयरफॉर S1p इक्वल टू रूट अंडर डी स्क्वायर 1 प्लस x माइनस डी स्क्वायर अपॉन कैपिटल डी स्क्वायर। रूट अंडर हो जाएगा, रूट का मतलब पावर हाफ, तो डी स्क्वायर का पावर हाफ दैट इज डी स्क्वायर का स्क्वायर रूट ओनली डी, और यहाँ 1 प्लस x माइनस डी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर दैट इज x माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर 1 प्लस x माइनस डी का होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, पावर स्क्वायर रूट होगा तो पावर हाफ हो जाएगा। नाउ S1p इक्वल टू अंडर रूट डी स्क्वायर अंडर ब्रैकेट 1 प्लस x माइनस डी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, और स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर हाफ, देयरफॉर वी गेट S1p इक्वल्स टू डी स्क्वायर का स्क्वायर रूट डी हो जाएगा अंडर ब्रैकेट 1 प्लस x माइनस डी स्क्वायर अपॉन कैपिटल डी स्क्वायर, ये पावर हाफ हो जाएगा। स्क्वायर रूट हाफ डी स्क्वायर का स्क्वायर रूट डी हो गया, और 1 प्लस x माइनस डी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर जो हमने ऑब्टेन किया था, तो S1p S1 से प्रोड्यूस होकर के लाइट वेवलेट सेकेंडरी वेवलेट जो p पर पहुंचेगा, तो उसका डिस्टेंस S1 से p का डिस्टेंस S1p हम मालूम किए, S1p डी 1 प्लस x माइनस डी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर स्क्वायर रूट दैट इज पावर हाफ। अब यहाँ बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज करेंगे, जिसमें 1 प्लस एक्स टू द पावर n, तो 1 प्लस एन एक्स के जगह यहाँ टर्म है x माइनस डी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, तो उसके पहले 1/2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। देयरफॉर वी गेट d इक्वल टू डी 1 प्लस 1/2 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस डी स्क्वायर अपॉन कैपिटल डी स्क्वायर। S1p मालूम हो गया यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन। यहाँ पर बाइनोमियल एक्सपेंशन का यूज किया गया, 1/2 पावर जैसे जो कि रूट के बदले में यहाँ दिया गया है वह यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया इस टर्म के पहले, तो यहाँ 1/2 x माइनस डी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन 1। और सिमिलरली इन अनदर राइट एंगल ट्रायंगल S2m2p वी कैन ऑब्टेन S2p बिकॉज S2p स्क्वायर इक्वल टू S2m2 स्क्वायर प्लस m2p स्क्वायर। तो S2p स्क्वायर जो कि कैपिटल D है, डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन एंड फ्रॉम द प्लेन ऑफ द टू स्लिट्स दैट इज टू कोहेरेंट सोर्सेस S1 एंड S2 विच इज कैपिटल D, सपोज हमने किया है। तो S2p स्क्वायर इक्वल टू S2m2 स्क्वायर प्लस यहाँ OP स्क्वायर m2p स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस OM2 स्क्वायर, OP प्लस OM2 स्क्वायर डेट इज x प्लस डी स्क्वायर। O से p का डिस्टेंस x होगा, O से m2 का डिस्टेंस का डिस्टेंस यहाँ पर ये डिस्टेंस भी d है, तो O से m2 का डिस्टेंस d होगा, तो m2 से p का डिस्टेंस हो जाएगा x प्लस d का स्क्वायर। तो सिमिलरली वी कैन राइट हेयर सिमिलरली इन ट्रायंगल इन द राइट एंगल ट्रायंगल इन ट्रायंगल S2m2p we have S2p equals to capital D 1 प्लस 1/2, और यहाँ डिस्टेंस m2p दैट इज m2p इज OP प्लस OM2 दैट इज x प्लस d। m2 से p का डिस्टेंस x प्लस d हो जाएगा, और यहाँ O से m1 से p का डिस्टेंस x OP माइनस OM1 था जो कि x माइनस d था। S1p जब मालूम हमने किया तब, तो 1 प्लस d 1 प्लस इसी रंग से इसको लिखा जा सकता है ट्रायंगल S2m2p में। S2p इक्वल टू d अंडर ब्रैकेट 1 प्लस 1/2 x प्लस d का होल स्क्वायर अपॉन कैपिटल D स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो अब S1p और S2p हमें मालूम हो गया, दोनों कोहेरेंट सोर्सेस S1 S2 से p से दो सेकेंडरी वेवलेट्स प्रोड्यूस होकर के p तक पहुंचा है।
तो जब P पर पहुंचेगा तो उसके बीच में जो पाथ डिफरेंस होगा, तो पाथ डिफरेंस का अब कंस्ट्रक्टिव जो पाथ डिफरेंस होगा H2P माइनस S1P, अब हम मालूम कर सकते हैं क्योंकि हमें S1P और H2P डिस्टेंस मालूम हो गया। अब दोनों का डिफरेंस से पाथ डिफरेंस होगा। उसके बाद कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन, पाथ डिफरेंस इक्वल टू लैम्डा बाई 2 इवन मल्टीपल ऑफ 2n इंटू लैम्डा बाई 2 दैट इज इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पॉइंट P पर जिससे कि ब्राइट डार्क फ्रिंज ऑब्टेन होगा, तो उसके लिए पाथ डिफरेंस H2P माइनस S1P वह ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 होगा। लैम्डा बाई 2 का लैम्डा बाई 2 में ऑड मल्टीपल का मीन मतलब इधर 2n+1 या 2n में 1 ऐड कर देंगे या 2n में 1 माइनस कर देंगे तो ऑड मल्टीपल हो जाएगा वो। तो नाउ पाथ डिफरेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ऑब्टेन पाथ डिफरेंस बिटवीन H2P एंड S1P, दैट इज नाउ पाथ डिफरेंस ये डेल्टा होगा, डेल्टा सिंबल से डिनोट किया जाता है। H2P ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक सिंबल है डेल्टा, जो डिफरेंस के लिए यूज होता है H2P माइनस S1P। और ये अब माइनस कर लेंगे H2P माइनस S1P, d1 + 1/2x प्लस d² अपॉन d² माइनस d इतना, तो दोनों टर्म को लिख करके d कॉमन हो जाएगा दोनों टर्म में, d1 + 1/2 इंटू x प्लस d² अपॉन d² माइनस 1 माइनस 1/2 x माइनस डी होल स्क्वायर अपॉन कैपिटल D² प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया। अब ये टर्म बचा दो टर्म 1/2 d², यहाँ भी इसमें 1/2 d² माइनस x प्लस d² प्लस x माइनस d²। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज होगा, x² प्लस 2xd प्लस d², और यहाँ x² माइनस 2xd प्लस d², लेकिन आगे माइनस है तो इसलिए जो माइनस टर्म है प्लस हो जाएगा और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो हमें x² प्लस x² माइनस x² कैंसिल प्लस d² माइनस d² कैंसिल, तो हमें बचेगा टर्म 2xd या प्लस 2xd दैट इज 4xd। तो नाउ इसमें अब 2d² सेकेंड दोनों टर्म में दो टर्म बचा, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, 2d² यहाँ भी है उसमें भी 2d² बाहर हो जाएगा, इक्वल टू d अपॉन 2d² x प्लस d² इज x² प्लस 2xd प्लस d², और वहाँ माइनस x माइनस d² है तो माइनस ब्रैकेट ब्रेक कर देते हैं, ब्रैकेट हटा देते हैं, x² माइनस 2xd होगा लेकिन आगे माइनस है तो प्लस 2xd होगा, और प्लस d² लेकिन आगे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस d² प्लस x² माइनस x² प्लस d² एंड माइनस d² विल कैंसिल आउट, देयरफॉर वी विल लेफ्ट विथ d से, यहाँ d का पावर 2 एक पावर कैंसिल हो गया, तो वी विल लेफ्ट विथ 2xd प्लस 2xd दैट इज 4xd अपॉन 2d, और ये 2 से 4 कैंसिल हुआ 2, देयरफॉर पार्ट डिफरेंस मालूम हो गया, डेल्टा इजकल टू H2P माइनस S1P इजकल टू 2xd अपॉन कैपिटल D, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। और ये पार्ट डिफरेंस के लिए पार्ट डिफरेंस का वैल्यू आ गया, डेल्टा इजकल टू H2P माइनस, पार्ट डिफरेंस को डेल्टा सिंबल से डिनोट करेंगे किया जाता है, तो डेल्टा इजकल टू H2P माइनस S1P विच इज इक्वल टू 2xd बाई कैपिटल D। अब P पॉइंट पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमको फ्रिंज वेव मालूम करना है, तो दोनों केस में मालूम हो सकता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में जब ब्राइट फ्रिंज फॉर्म होगा, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में भी जब डार्क फ्रिंज फॉर्म होगा, दोनों में फ्रिंज वेव का उतना ही एक्सप्रेशन आएगा। दो कंस्टिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस मालूम कर लेंगे, या दो कंस्टिक्यूटिव डार्क फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस मालूम कर लेंगे, फ्रिंज वेव मालूम हो जाएगा। Now for constructive interference at point P of the screen N, we have condition is to get bright fringe at point P. The condition is part difference H2P minus S1P, part difference between two light wavelets, secondary wavelets is, तो first में for constructive interference or to get bright fringe at point P, for the constructive interference at point P of the screen N, constructive interference
at point P of the screen N, and we have path difference, that is delta S2P minus S1P, delta is equal to S2P minus S1P, and it is इवन मल्टीपल ऑफ लेमडा बाई टू, दैट इज 2n। इवन मल्टीपल कब होगा, जब 2n से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ लेमडा बाई टू, और एन लेमडा भी कर सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एन लेमडा दैट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ लेमडा, वेवलेंथ ऑफ लाइट वेवलेट्स लेमडा। यहाँ पर इवन मल्टीपल है तो लेमडा बाई टू, वेवलेंथ ऑफ लाइट लेमडा का हाफ लेमडा बाई टू, और उसका इवन मल्टीपल होगा तो 2n से मल्टीप्लाई होगा, और नहीं तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेमडा, ये भी कंडीशन हो सकता है। यार S2P माइनस S1P इज 2xd बाई डी, कैपिटल डी, और 2xd अपॉन कैपिटल डी इज इक्वल टू 2n इंटू लेमडा बाई टू, और नाउ x, देयरफॉर x मतलब डिस्टेंस ऑफ ब्राइट फ्रिंज, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस केस है तो डिस्टेंस ऑफ ब्राइट फ्रिंज एट पॉइंट P फ्रॉम पॉइंट O ऑफ द स्क्रीन, ये डिस्टेंस x था। तो x nth माने nth ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस हम यहाँ पर होगा सेंटर से, स्क्रीन के सेंटर O से nth ब्राइट फ्रिंज का ये पोजीशन होगा xn, जो कि पॉइंट P पर ऑब्टेन होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में। तो मीन्स x इज टू xn, दैट इज डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंटर O ऑफ द स्क्रीन, और O पर जो है, O पर का जो पोजीशन होगा वो ब्राइट फ्रिंज होगा, जैसा कि मैंने पहले भी बतलाया। और इस एक्सपेरिमेंट में ये जो सॉलिड कर्व है ये वेवलेट्स के क्रेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, क्रेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, पिक को रिप्रेजेंट करता है, जबकि डॉटेड जो यहाँ कर्व है, डॉटेड स्फेयर है या डॉटेड कर्व, तो ये डॉटेड कर्व सेकेंडरी वेवलेट के ट्रॉ को बतलाता है। ट्रॉ का मतलब है वेव का उसका वेव का जो लोअर पार्ट होगा, लोअर पार्ट उसको ट्रॉ कहा जाएगा, और क्रेस्ट जो हो गया उसका पिक। तो नाउ एस यहाँ से मालूम हो जाएगा, x इक्वल टू x और x इक्वल टू xn, इसको हम सपोज करेंगे xn, दैट इज डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। यहाँ से x मालूम हो जाएगा, तो यहाँ पर 2n लेमडा, यहाँ हो जाएगा 2n लेमडा अपॉन x मालूम करना है, लेमडा d हो जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई अपॉन x 2d और 2 इंटू 2 दैट इज 4d, 2 इंटू 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 4d, x मालूम करना था, d को नीचे ले आए, मैंने 2d को नीचे ले आए, तो 2 इंटू 2d दैट इज 4d, यहाँ से कैंसिल हो गया 2, दैट इज n लेमडा d बाई n लेमडा d अपॉन 2d। तो nth स्क्रीन n के सेंटर O से nth ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस हो गया xn इक्वल टू xn n लेमडा d बाई 2d। और इस पर ही प्रॉब्लम पूछा जाता है CBSE बोर्ड एग्जाम में, और अदर स्टेट बोर्ड्स एग्जाम्स में भी इस फार्मूला पर प्रॉब्लम पूछा जाता है। NCERT टेक्स्ट बुक में भी इस फार्मूला पर प्रॉब्लम है, और संभवतः 10.4 जो प्रॉब्लम है इस फार्मूला पर बेस्ड है। तो x इक्वल टू xn इक्वल टू n लेमडा d अपॉन 2d, लेमडा वेवलेंथ ऑफ लाइट है, d कोहेरेंट सोर्सेस S1 S2 मीन्स 2 स्लिट्स के प्लेन से स्क्रीन का डिस्टेंस है कैपिटल D। दिस इज इक्वेशन नंबर 4, विच इज वी ऑब्टेन distance of nth bright fringe from the center of the screen. Now fringe, to get to obtain expression for fringe width, we have to obtain xn plus 1, that is distance of n plus 1th bright fringe from the center। क्योंकि सेंटर से nth ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस तो मालूम हो गया, अब उसका अगला जो ब्राइट फ्रिंज होगा तो उसमें ऑब्टेन करने के लिए उसका डिस्टेंस सेंटर O से, स्क्रीन के सेंटर O से ऑब्टेन करने के लिए यहाँ n में 1 ऐड करना होगा, मतलब अगला जो ब्राइट फ्रिंज होगा xn plus 1 होगा। देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ n plus 1th ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर O इज नाउ xn plus 1 इक्वल्स टू n के बदले में n plus 1 लिखा जाएगा, लेमडा d अपॉन 2d, दिस इज इक्वेशन नंबर 5। और इन दोनों के का जो डिफरेंस होगा xn plus 1 माइनस xn, मतलब स्क्रीन के सेंटर O से n plus 1th
ब्राइट फ्रिंज, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन हमने अप्लाई किया है, तो स्किन के सेंटर एन, स्किन एन के सेंटर ओ से एन प्लस 1th ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस एक्स एन प्लस 1 में से उसके पहले वाला जो ब्राइट फ्रिंज होगा एक्स एन, उसका एक्स एन का जो डिस्टेंस एक्स एन है उसको माइनस कर लेंगे तो दो कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस मालूम हो जाएगा। तो नाउ फ्रिंज विथ बीटा इज डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट और डार्क फ्रिंजेज। तो फ्रिंज विथ बीटा equals to xn plus 1 distance between two bright or dark fringe from the center, from the central maxima, that is central bright fringe is xn plus 1 minus xn, that is अब दोनों का वैल्यू रख पुट कर दें xn plus 1 n plus 1 xn plus 1 is n plus 1 lambda d upon 2d minus xn is n lambda d upon 2d, that is n plus 1, इसमें केवल टर्म बचेगा ये वाला n प्लस 1 लेमडा डी बाई 2d कॉमन हो जाएगा, तो ये इक्वल्स टू लेमडा डी बाई 2d कॉमन हो गया। यहाँ बचेगा n प्लस 1 माइनस n से n प्लस n माइनस n कैंसिल हो गया, दैट इज लेमडा डी बाई 2d। यही फ्रिंज विड्थ हो जाएगा फॉर ब्राइट फ्रिंज, इट इज फ्रिंज विड्थ बीटा इज इक्वल टू लेमडा डी अपॉन 2d, एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ फॉर ब्राइट फ्रिंज, जो कि हमें मालूम करना था बीटा इजकल टू लेमडा डी बाई 2d। काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला, महत्वपूर्ण फार्मूला, प्रॉब्लम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और डेरिवेशन में भी डिफरेंट बोर्ड एग्जामिनेशंस में इसे पूछा जाता है लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में। तो बीटा इजकल टू लेमडा बाई डी बाई 2d, दिस इज इक्वेशन नंबर 5 एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ फॉर ब्राइट फ्रिंजेज, दैट इज फ्रिंज विड्थ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट और डार्क फ्रिंजेज। यहाँ ब्राइट फ्रिंज के लिए फ्रिंज विड्थ आ गया बीटा इजकल टू लेमडा डी बाई 2d, और डार्क फ्रिंज के लिए भी इतना ही आएगा, लेकिन उसमें कंडीशन जो है यहाँ जो पार्ट डिफरेंस डेल्टा h2p माइनस s1p 2xd बाई डी है, तो ये पार्ट डिफरेंस ये लेमडा बाई 2 का ऑड मल्टीपुल होना चाहिए। तो ऑड मल्टीपुल के लिए 2n प्लस 1 या 2n माइनस 1, 2n में से 1 माइनस कर दें या प्लस कर दें, ऑड मल्टीपुल हो जाएगा। तो वो कंडीशन हम मालूम करें थी अप्लाई करना होगा डार्क फ्रिंज के लिए, लेकिन यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज के लिए फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन आ गया बीटा इजकल टू लेमडा डी अपॉन 2d। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ फॉर ब्राइट फ्रिंजेज। Now to get expression for dark fringes for fringe width for dark fringes, we have to write the condition of destructive interference at point P of the screen N. Now for the destructive interference at point P, for the destructive interference that is to obtain dark fringes, to get dark fringes at point P। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में जहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा माध्यम के मीडियम के दो पॉइंट्स पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तो वहाँ पर डार्क फ्रिंज का फॉर्मेशन होगा। तो फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस at point P of the screen, we have condition path difference delta, path difference between two light waves producing from coherent sources S1 and S2, path difference between S1 and S2, that is delta is equal to h2p minus s1p, which was earlier obtained 2xd by कैपिटल D, और इसका कंडीशन होना चाहिए पार्ट डिफरेंस लेमडा बाई 2 का ऑड मल्टीपुल, दैट इज 2n प्लस 1 या 2n माइनस 1, 2n प्लस 1 और 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2, ये हो गया ऑड मल्टीपुल हो गया। और किसका ऑड मल्टीपुल होगा? वेवलेंथ ऑफ लाइट का हाफ, वेवलेंथ ऑफ लाइट लेमडा का हाफ लेमडा बाई 2 का ऑड मल्टीपुल होना चाहिए 2n प्लस 1 या 2n माइनस 1, और x इक्वल टू और x इक्वल्स टू यहाँ पर भी x nth सेंटर O से जो ब्राइट फ्रिंज सेंटर पर है स्क्रीन का
तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से nth डार्क फ्रिंज का के बीच का डिस्टेंस होगा x इक्वल टू xn nth ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, डिस्टेंस ऑफ nth डार्क फ्रिंज, सॉरी, डिस्टेंस ऑफ nth डार्क फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज x इक्वल टू xn, और यहाँ मालूम हो जाएगा x इक्वल टू xn, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 2n प्लस 1 लेमडा बाई टू मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ d भी चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, और यहाँ नीचे में 2d आ जाएगा, 2d नीचे आ जाएगा, 2 पहले से है, लेमडा बाई टू इंटू 2d दैट इज 2n प्लस 1 लेमडा डी बाई 4d इंटू 2n प्लस 1 ये कंडीशन से ऑब्टेन हुआ इक्वेशन नंबर 5 के बाद 6, और ये पार्ट डिफरेंस का कंडीशन माने डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन से ये चीज़ ऑब्टेन हुआ x इक्वल टू xn दैट इज डिस्टेंस ऑफ nth डार्क फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज O. नाउ फॉर next bright dark fringe, distance of next dark fringe from the center O, we have putting n equal to n plus 1 in place of xn, we have xn plus 1 which is the next dark fringe, that is n plus 1th dark fringe from the center O of the screen. So xn plus 1 is here, n is replaced by n plus 1 in this equation, then we get 2n के बदले में n is replaced by n plus 1 plus 1, ये बाहर में plus 1 है, लेमडा डी यहाँ पर इस इक्वेशन में लेमडा डी अपॉन 4d दैट इज 2n प्लस 2 प्लस 1 दैट इज 2n प्लस 3, 2n प्लस 2 प्लस 1 दैट इज 2n प्लस 3 लेमडा डी अपॉन 4d. अब दोनों लास्ट में अब दो कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंज के बीच का जो डिस्टेंस होगा x, एक हो गया x nth डार्क फ्रिंज सेंटर से, और दूसरा हो गया n प्लस 1th डार्क फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर. तो दोनों का डिफरेंस यहाँ भी दो कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेस के बीच का डिस्टेंस भी फ्रिंज विड्थ होगा, जैसा कि हमने दो कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस के लिए ऑब्टेन किया था. दो कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस के लिए एक्सप्रेशन बीटा इक्वल टू लेमडा डी बाई 2d, और यहाँ भी दो कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस भी फ्रिंज विड्थ ही होगा. देयरफॉर बीटा means distance between two consecutive dark fringe, that is fringe width beta. यहाँ भी fringe width होगा for dark fringe width beta equals to xn plus 1 minus xn, दोनों को का डिफरेंस ले लेंगे तो 2n plus 1, यहाँ भी लेमडा डी बाई 4d इस टर्म में भी और यहाँ पर भी. दिस इज इक्वेशन नंबर 7. तो इसमें भी लेमडा डी बाई 4d है और इसमें भी लेमडा कैपिटल डी बाई 4d है, 4 स्मॉल d. तो ये कॉमन हो जाएगा, तो 2n प्लस 3 माइनस 2n प्लस 1, 2n से 2n कैंसिल हो जाएगा, 3 माइनस 1 दैट इज 2, तो 2 लेमडा डी बाई 4d रिजल्ट आएगा. दोनों का डिफरेंस लेने पर 2 लेमडा डी अपॉन 4d. जब ये वैल्यू पुट करेंगे 2n प्लस 3 लेमडा डी बाई 4d माइनस लेमडा डी बाई 4d 2n प्लस 1, तो हमें रिजल्ट आएगा 2 लेमडा डी बाई 4d, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर 2 से 4 कैंसिल होकर 2 हो गया, 4d था केवल 4d. अब यहाँ 2 से 4 कैंसिल होकर नीचे 2 हो गया, फिर वही उतना ही रिजल्ट आ गया लेमडा डी बाई 2d. इस प्रकार हमने देखा फ्रिंज विड्थ फॉर, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ फॉर डार्क फ्रिंजेज. 2 कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंजेज के लिए फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन हो गया इक्वेशन नंबर 8. और इक्वेशन 5 में हमने दो कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज के बीच जो डिफरेंस था फ्रिंज विड्थ, उसका एक्सप्रेशन ऑब्टेन किया था, जो कि सिमिलर इतना ही है, सेम है इक्वेशन. बीटा इक्वल टू लेमडा बाई 2d इक्वेशन 5 में था, जो स्टिल अभी बोर्ड पर है. और बीटा इक्वल टू यहाँ दो कंसेक्यूटिव डार्क फ्रिंज के बीच का डिस्टेंस भी लेमडा डी बाई 2d, इन दोनों को माइनस xn प्लस 1 और माइनस xn को का डिफरेंस लेने पर ये सेम रिजल्ट लेमडा डी बाई 2d. तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ फॉर डार्क फ्रिंजेज विच इज गिवन बाई इक्वेशन 8. और इसी के साथ ये पार्ट समाप्त होता है. थैंक यू वेरी मच.